Good morning, everyone. Now, today, as I told you, we are going to finish vectors, the remaining questions. They were all very, very good questions. And as you had seen last time, in those 19 minutes, I think we could solve only 10 questions because all of them were either lengthy or they were tricky. The remaining 4-5 questions also are absolute favorite of the examiners. Tricky or lengthy. Very nice questions. This weekend is a non-physics weekend. Yes or no? So I'll just try and find out some extra questions from some other books and I will just prepare the PDF of that and I'll send it to you. You can take the printout and do extra practice from that. This week, as you have seen the timetable, all 3 lectures are going to be taken by me. Monday, Wednesday and Friday, all 3 lectures I am going to take. So today when vectors is over, throughout you will get this book now. We are going to start with heat, and heat we are going to divide in 2 parts. BCM students, in your book, MHT CET book of Marvel, there are 2 parts. One is thermal properties of matter, which is called heat 1. And second is kinetic theory of gases plus radiation plus thermodynamics. We call this as heat 2. As per government textbook Maharashtra, you will have heat in paper 1, I mean this also, in 11th standard also, and in 12th standard also. As per NCERT books, national level books, again you will have 2 different categories. Yes or no? So today we are going to start with heat 1. Now, please check. Did we solve question number 29 last time? Was that the last question? Yes, sir. Was question number 29 the last question last time? Yes or no? और ये क्वेश्चन मैंने संडे एग्जाम में पूछा था, मस्ती किया था, देखा कि नहीं क्या मस्ती किया था मैंने? I had made that 30 Newton as 60 Newton. तो जो रट्टा मारने वाले लोग थे वो मर गए. सॉरी, सीईटी में था, शायद नीट में भी था, दोनों में था. जेडब्ल्यू में नहीं था. जेडब्ल्यू में सी आई हैव गॉट लिमिटेड क्वेश्चंस ना, आई हैव टू आस्क ओनली 30 क्वेश्चंस. So 15 to 20 questions are ruled out. But anyways, it's okay. Level of questions is good. Are you on question number 30? Again बेटा, मैंने जैसे लास्ट टाइम बोला था, आप लोगों को कुछ भी कॉपी नहीं करना है. खाली मैं क्या करूँगा, ये एक क्वेश्चन में से मैं 4 क्वेश्चंस बनाऊंगा. So your focus should be on how will sir change the question. Check please. Have they given this diagram? They have given a circle and they have given 3 vectors. OA, OB, OC. Obviously, all of them are radii vectors. All of them are radii vectors. Why radii vector? Because length of this vector is equal to the radius of the circle. Apply common sense. Is radius vector a constant vector or no? No. Never. Because the direction keeps changing. That is, it is always a variable vector. Now, they have given me 3 vectors. OA, OB and OC. And they have asked me, what is the resultant of these 3 vectors? Apply common sense. Most important. देखो क्या लिखा है मैंने इधर. For the time being, ignore OB. For the time being. The fact is you cannot ignore OB. OB is there. But for the time being, if I ignore OB, right? That means if I don't take this vector into account, चलो for the time being I am ignoring this. ये vector है ही नहीं. अगर ये vector है ही नहीं, मतलब ये दोनों vectors right angle पे है. मान लो point B भी नहीं है. मान लो point B भी नहीं है. मतलब मेरे पास सिर्फ 2 ही वेक्टर्स है, OA and OC. तो what is the resultant of OA and OC? According to parallelogram law, should it be root 2 times R? Because when I try to complete a parallelogram, will it be a square? And when it is a square, can I say diagonal of a square is root 2 times side? तो अभी ये जो मैंने red वाला वेक्टर बनाया, right? Who is this red vector? Is it resultant of OA and OC? Is it result? So for the time being, ignore OB. मैंने OB निकाल ही दिया डायग्राम में से. तो what is resultant force of OA and OC? और वो भी मैंने mod लिखा है. Should it be R square plus R square का root? Actually speaking, it should be root of R square plus 2 cos 90. Because right now the angle is 90. Cos 90 is 0. Is my answer root 2R? इसका मतलब रूट 2 आर कौन हुआ बेटा? ये रेड वाला हुआ, ये रूट 2 आर हुआ. नाउ आई हैव टू गेट दैट वन विच आई इग्नोर बैक. मैंने क्या बोला था? फॉर द टाइम बी इग्नोर ओबी. अब मैं बोल रहा हूं गेट
OB back, मतलब वेक्टर OB तो था ही ना, तो वेक्टर OB was this, वेक्टर OB was this, and was it R? Yes. Right? Now can I say root 2 R and R are in the same direction? So I just have to add them. या तो they are parallel, correct? तो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 2, पहला दूसरा कॉसा 0, वो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है. If this is vector of size 4 and if this is vector of size 3 and if they are exactly in the same direction, then I write my final answer as 7 without any second thought. If this is vector of size 4 and if this is vector of size 3, can I write my final answer as 5? If this is vector of size 4 and if this is vector of size 3, is my answer 1. So when I get it back, what will be f overall? Will it be root 2r plus r? So will it be r common root 2 plus 1? So will it be r common root 2 is 1.41 plus 1. So will it be 2.41 r? अब या तो वो लोग ऑप्शन ऐसे देते हैं और या तो फिर वो लोग ऑप्शन ऐसे देते हैं. मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम उन्होंने ऑप्शन कैसे दिया, कैसे दिया है. 1 plus root 2. 1 plus root 2. So the answer should be Bombay. Your answer should be. अब एकदम ध्यान से सुनो बेटा, मैं एक में से 4 क्वेश्चंस बना रहा हूँ. एक तो ये ओरिजिनल क्वेश्चन हो गया. हाँ, अभी खाली सोचो, खाली सोचो. वो वेक्टर OB को, ये वेक्टर OB था ना, ये वेक्टर OB था, खाली उसको मैंने उल्टा कर दिया, एग्जैक्टली उल्टा. मतलब ये वेक्टर ऐसा नहीं है, ऐसा है. Is my answer root 2 minus 1 times r? And I'm sure ऑप्शन में वो होगा. It's a very beautiful question. Options are so beautifully framed. The answer in that case will be root 2 minus r, root 2 minus 1 times r. That means 0.41 r. बराबर. अब एकदम ध्यान से सुनो, ओरली आंसर देना है आपको. अगर बेटा ये सर्कल था और ये एंगल 45 थे, उसके बदले मैंने ये एंगल 60 कर दिए. 60 OA, OB, OC, ये एंगल 60 है बेटा और ये एंगल 60 है. Can you give me the answer orally? Brilliant, very good. Answer will be 2R. You have to follow the same strategy. ये पहले आप OB भूल गए. जब आप ये OB भूल गए, मतलब एंगल between these two vectors is 120. Angle between OA and OC is 120. When two vectors are of same size, an angle is 120. Can I say resultant is of same size? तो अभी जो मैंने बनाया वो OA और OC का रिजल्टेंट है. अब जो OB मैंने इग्नोर किया था वो OB भी मैं लेके आया, वो OB भी मैं लेके आया. सो ये ग्रीन वाला कौन था? R. ये रेड वाला कौन है? R. Is my answer 2R? I am 100% sure 2R दिया होगा. बराबर. आगे सुनो, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया. पहला क्वेश्चन था ओरिजिनल डायग्राम, दूसरा क्वेश्चन था व्हाट इफ OB इज रिवर्स्ड, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इफ 45 and 45 आर रिप्लेस्ड बाय 60 and 60. चौथा क्वेश्चन है आफ्टर रिप्लेसिंग देम बाय 60 and 60 व्हाट इफ OB इज रिवर्स्ड. परफेक्ट, वेरी गुड. अगर बेटा ये वेक्टर को उल्टा कर दिया मैंने रेड वाले को, इज माय आंसर 0. इज इट अ सिचुएशन ऑफ द फैन? ये मैंने आगे भी सिखाया. यहाँ पे बेटा फोर्स कितना होता है? यहाँ पे 0. रीजन दिस टू ब्लेड्स आर ऑफ सेम साइज, तो इनका इफेक्टिव आंसर इधर है, इधर. और उसको वो ये नलीफाई करता है, किया है कि नहीं? मतलब ये एक में मैंने 4 सम्स किया. आप एक काम करो, ये पॉसिबिलिटीज में मैं लिखवा रहा हूँ. पहले आप ऑप्शंस में बॉम्बे के बाजू में लिखो. बॉम्बे में ऑलरेडी ऑप्शन प्रिंट करके दिया है ये, आप उसके बाजू में लिखो इज इक्वल टू 2.41 r. इज इक्वल टू 2.41 r. फिर एक ऑप्शन रूट 2r है, उसको लिखो रूट ऑफ 1.41 r. रूट ऑफ 1.41. I'm so sorry. 1.41 r because root 2 anyways is 1.41. root 2 means 1.41. So 1.41 r. फिर आपके पास एक ऑप्शन है r ब्रैकेट रूट 2 minus 1, उसको लिखो 0.41 r. बराबर. अब एक काम करो, यहां पे नीचे लिखो एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज फॉर क्वेश्चन नंबर 30. एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज फॉर क्वेश्चन नंबर 30. एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज फॉर क्वेश्चन नंबर 30.
लिखा? टिक डाउन. If in question number 30 both the angles 45 degree, both the angles 45 degree are replaced by 60 degree each, are replaced by 60 degree each, then the final answer would be 2r. Then the final answer would be 2r. Then the final answer would be 2r. लिखा ये? Same article continues, next paragraph. After doing this, if OB is reversed, then the final answer will be 0. After doing this, if OB is reversed, then the final answer will be 0. Zero vector. 0 vector, of course. उन्होंने तो बेटा मैग्नीट्यूड ही पूछा है ना, तेरे सारे ऑप्शंस मैग्नीट्यूड में दिए. अच्छा, एक आर यू ऑन ऑप्शन दिल्ली? दिल्ली आंसर कब आता? सेम डायग्राम में वो भी वॉज रिवर्स. हाँ, तो उधर जो प्रिंटेड डायग्राम है ना, उसके दिल्ली ऑप्शन में लिखो इफ ओबी इज रिवर्स्ड. If OB is reversed. I remember question number 31 was done. I did 3 questions together, 9th, 22nd and 31. Please check. 31 was done. उसमें लिखो 31 में लिखो same as 9th. 31 में लिखो same as 9th. 9th में लिखो solve 22 and 31. 9th में लिखो solve 22 and 31 और 31 में लिखो similar to 9. 32 was already done. Will you please check? 32 was done. Answer was C. 32 was done. Please confirm. Okay. 33. A very beautiful question. Very beautiful question. इसमें बेटा एक छोटा सा मिसप्रिंट है. पहले हम लोग को मिसप्रिंट करेक्ट कर लेते हैं. बॉम्बे ऑप्शन में राइट साइड पे 0 वेक्टर होना चाहिए. वो वेक्टर प्लस वेक्टर शुड बी अ वेक्टर. बराबर? ओके, शुरू करो. अब उन्होंने क्या किया है कि जो वेक्टर डायग्राम होता है ना बॉब पे स्फीयर में, वो अलग से ड्रॉ करके बताया ताकि वो डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए. राइट? लॉजिक समझो बेटा. लॉजिक, ये वॉल है, यहां पे एक स्ट्रिंग है और यहाँ पे बॉब है. राइट? तो ये बॉब को मैं पुल कर रहा हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी? आइदर पुल फोर्स या तो पुश फोर्स. अब ये तो वॉल है ना, तो मैं इधर से पुश तो नहीं कर सकता बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी हार्ड. सो आई एम होल्डिंग द बॉब एंड आई एम शिफ्टिंग इट थ्रू एंगल थीटा. राइट? मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है वो एक्चुअली स्फीयर पे ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. सोचो, व्हाट इज दिस? वेट. What is this? Tension. And what is this? Pull force. याद करो, सेम असाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने बोला था कि फाइंड आउट द हॉरिजॉन्टल फोर्स with which you are pulling this bob. You can cross check please. Check please. और ये मैंने iPad नोट्स में भी सॉल्व करके दिया था. क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ. अपना आंसर आया था 3√3 किलोग्राम वेट. बराबर? तो P का मतलब क्या है? पुल फोर्स. उन्होंने क्या किया है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड ना हो करके उन्होंने 3 वेक्टर्स अलग से बना के लिया है साइड में. वी कॉल दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम. मतलब बॉडी लो, उसको अलग से ड्रॉ करो और उसके ऊपर जितने फोर्सेस एक्ट करे वो सब ड्रॉ करो. दैट इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. राइट? नाउ अप्लाई कॉमन सेंस. मैंने एक ही डायग्राम में सब कुछ बता दिया. रीजन आई वांट टू अंडरस्टैंड द ऑप्शंस. अप्लाई कॉमन सेंस. क्या सिखाया था मैंने बैलेंसिंग के लिए? अगर ये थीटा है, राइट, इसको एक्सटेंड करो, यस और नो. तो बेटा यहाँ पे मेरा पैरेललोग्राम बना, यहाँ पे मेरा पैरेललोग्राम बना. अभी देखते हैं कौन किसको बैलेंस करता है. करेक्ट? 1 by 1. Do you agree with me? This vector, this red one, is vector P plus vector W, जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव फोर्स. तो वेक्टर P plus वेक्टर W
किसको बैलेंस कर रहा है? वेक्टर T is balanced by वेक्टर P प्लस वेक्टर W. हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर T प्लस वेक्टर P प्लस वेक्टर W should be null vector. सोचो, according to Lami's theorem, what happens here? Will equilibrium condition come? That is zero. सोचो, ये कौन है? टेंशन वेक्टर. ये कौन है? वेक्टर P प्लस वेक्टर W. तो वेक्टर P प्लस W को बैलेंस कौन कर रहा है? T. मतलब अगर मैं P प्लस W को ये वाला फोर्स गिनूं तो कहना है T एग्जैक्टली उसका उल्टा फोर्स है. यहां तक समझा बेटा? सुपर श्योर. इसका मतलब ये हुआ कि नाउ आई विल चेक द ऑप्शंस वन बाय वन. मेरा फर्स्ट ऑप्शन है P इज इक्वल टू W tan थीटा. मुझे ये चेक करना है कि चार स्टेटमेंट से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है. अंडरलाइन द लास्ट वर्ड इन द क्वेश्चन. Underline the last word. Right? Now apply common sense. Now apply common sense. If T plus P plus W is 0, इसका मतलब actually speaking, vector T is vector P plus vector W का negative. Yes or no? Right? लेकिन अगर इसको मैं आगे solve करूं, then can I say T square is equal to P square plus W square? ये समझा कि बाउंसर गया. ये पार्ट समझा कि बाउंसर गया. इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर और ये T को बैलेंस कर रहा है. राइट? कैन आई से इफ वेक्टर T इज वेक्टर P प्लस वेक्टर W, देन इसका स्क्वायर इज इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस 2 this into cos theta. What is the angle between P and W? 90. So can I say T square is P square plus W square? मतलब ये स्टेटमेंट राइट है. मतलब ये स्टेटमेंट राइट है. दिस इज ट्रू. अगर बेटा ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है बराबर. ये भी ट्रू है. अभी मैं तीसरा वाला चेक करता हूं. P इज इक्वल टू W tan थीटा. कॉमन सेंस अप्लाई करो. किया हुआ है हम लोगों ने पास्ट में. अगर बेटा ये थीटा है तो ये थीटा हुआ कि नहीं? तो ये डायग्राम में मैं ऐसे लिख सकता हूं tan ऑफ थीटा इस सामने वाला अपॉन बाजू वाला. तो थीटा का सामने वाला साइड कौन है? P. इज इट P अपॉन W? सो कैन आई से पुल फोर्स इज वेट टाइम्स tan ऑफ एंगल. और जैसे जैसे एंगल मुझे बढ़ाना है वैसे वैसे मुझे ज्यादा पुल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. रीजन है एंगल इंक्रीजेस tan ऑफ एंगल इंक्रीजेस. लॉजिक समझा? मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ये भी ट्रू स्टेटमेंट है. ओके, अभी बारी बारी से देखते जाओ बेटा. ये ट्रू स्टेटमेंट है मतलब फर्स्ट वाला ट्रू है. सेकंड वाला ट्रू है बिकॉज मैंने नल वेक्टर ऐड करवाया. थर्ड वाला ट्रू है, मैंने प्रूव किया. फोर्थ वाला एकदम गलत है. यू नो व्हाई? T, P and W they are not scalars, they are not numbers. अगर numbers होता और मैं ऐसा लिखता ना 2 plus 3 is 5 तो चलता. Vectors नहीं लिख सकता ऐसे में. Can I say vector T plus vector P should be vector W? In fact, vector P plus W is vector minus T. Yes or no? So last वाला option wrong. The reason you should go for vector addition. You cannot go for scalar addition. You cannot go for algebraic addition. You have to go for vector algebraic addition. ये चारों में से रॉन्ग वाला कौन सा है? लास्ट वाला. मुझे सेकंड ऑप्शन करेक्ट क्यों करवाना पड़ा बेटा? समझा? नहीं तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता. कोई भी स्टूडेंट उसको भी चैलेंज कर सकता था, सर ये भी गलत है. हाउ कैन वेक्टर प्लस वेक्टर बी अ स्केलर? इसलिए मैंने वो करेक्ट करवाया क्योंकि दिल्ली पक्का रॉन्ग है. दिल्ली पक्का रॉन्ग है और बॉम्बे में प्रिंटिंग मिस्टेक था. समझा बेटा सबको? सुपर श्योर. रिपीटेशन रिक्वायर्ड. आई सजेस्ट यू शुड कॉपी. अच्छा एक मिनट दिया है ना सोल्यूशन. लेट मी सी द सोल्यूशन. इफ इट इज एवरीथिंग परफेक्ट गिवन नो नीड टू कॉपी. Very beautifully given beta. All options explained properly. All options explained properly. Now in that case I suggest go through the question one more time. Go through the question one more time and revise the question. I am waiting for you. And that when the sphere is said to be in equilibrium. In equilibrium. Only at that moment. That moment. हाँ, नहीं तो बेटा वो बॉब वापिस नहीं आएगा हाँ, कभी.
when you are taking the reading at that fraction of a moment, right? Apply common sense बेटा. जब ये oscillate करेगा ना, इधर आके वो रेस्ट पे आएगा, तभी तो वो वापस आएगा. तो जब वो रेस्ट पे आता है, I hope you can visualize. चेक करो, ये चेक करो बेटा. Everybody here. Is it oscillating? अब जब ये इधर आता है ना, इधर ग्रेजुअली इसका स्पीड कम होते जाता है. इधर ये मोमेंटरीली रेस्ट पे आता है, इसलिए ये वापस आता है. स्पीड बढ़ते जाता है, इधर स्पीड मैक्सिमम होता है, फिर ये स्पीड कम होते जाता है, वापस रेस्ट पे आता है, इसलिए वापस आता है. सो रिमेंबर, फॉर एन ऑसिलेटिंग बॉडी at extreme positions the velocity is zero. At extreme positions the velocity is zero. क्योंकि अगर extreme position पे velocity zero नहीं है तो बॉडी वापस ही नहीं आएगा. याद करो, हम लोगों ने जब मैंने टेंशन वाला कॉन्सेप्ट सिखाया था, mg sin थीटा ऐसे बताया था. आपके आईपैड नोट्स में है शायद, पेज नंबर 16 पे. mg sin थीटा इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स. इट ऑलवेज हेल्प्स द बॉडी to restore its original position back. If you want, you can just have a look at that diagram right now. It is page number 16, left top. iPad notes में page number 16, left top देखो सब लोग. By chance आपके पास iPad notes नहीं है आज, I can understand. You might have thought कि आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है. बाजू वाले के पास है तो बेटा एक बार खाली देख लो. Page number 16, left top. सिंपल पेंडुलम का डायग्राम देखो. सिंपल पेंडुलम का डायग्राम देखो. Do you see mg sin theta as unbalanced force? Do you see mg sin theta as unbalanced force? बीच में बताओ, बीच में. Do you see mg sin theta as unbalanced force? मतलब अगर बॉडी राइट साइड पे था तो mg sin theta लेफ्ट साइड पे था, और बॉडी अगर लेफ्ट साइड पे था तो mg sin theta राइट साइड पे था. I repeat, are you on page 16 iPad notes, left top? Simple pendulum का diagram. In the diagram, do you see mg cos theta is balancing tension? And what about mg sin theta? Is it unbalanced force? So mg sin theta is also called restoring force, helping the body to go back to original. Okay? Feeling cold? Feeling hot? Okay. 23 पे already है. Okay. समझा बेटा ये क्वेश्चन? Are we on next question? Very beautiful question. Really a talented question. Question 34. खोपड़ी मार्क करो बेटा. 3 concurrent forces. This word concurrent is very important. Concurrent का मतलब होता है starting from the same point. 3 concurrent लिख के रखो चाहिए तो. concurrent वर्ड आप लोगों के लिए शायद नया है. कोई इनिशियल, यस. concurrent मतलब सेम स्टार्टिंग पॉइंट या तो सेम मीटिंग पॉइंट, दोनों चलेगा. 3 concurrent forces of same magnitude. I also want you to underline same magnitude. Are in equilibrium. I also want you to underline they are in equilibrium. अप्लाई कॉमन सेंस बेटा. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होता है, इसका मतलब नेट फोर्स इज जीरो. वेरी गुड. आई वांट ऑल ऑफ यू टू रिफर सिनॉप्सिस पॉइंट नंबर 33 प्लीज. आपका बुक का सिनॉप्सिस बेटा, बुक का. इसका मतलब ये हुआ कि इसका डायग्राम ऐसा होना चाहिए. 1 2 and 3. Do you agree with me? For sure. ये F हो गया, 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 ये F हो गया. बराबर. For sure एंगल कितना होना चाहिए? For sure. Do you agree with this? For sure ये एंगल 120 होना चाहिए. What is the argument? आप लोग इसका लैंग्वेज चेक करो, एकदम परफेक्ट. Was theta equal to 2 pi by n? कितने फोर्सेस है मेरे पास? 3 ना. 1 2 and 3. Yes or no? Now they are asking me, come back to the question please. Also name the triangle.
राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स? तो एंगल 120 आ गया, तो फॉर श्योर मेरा आंसर बॉम्बे या तो दिल्ली है, फॉर श्योर। अभी मैं वेक्टर को चेंज तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन शिफ्ट बिल्कुल कर सकता हूं। यस और नो? सो आई एम शिफ्टिंग दिस वेक्टर्स 1, यस और नो, 2 and 3, right? Why this is a beautiful question, you know? हम लोग बॉम्बे या तो दिल्ली में से आंसर अज्यूम कर रहे हैं कि बॉम्बे या तो दिल्ली में से कोई तो आंसर है। अभी स्कूल में हम लोगों ने सीखा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल शुड बी 180, तो 120 120 और 120 तो 360 हो जाएगा, और हमको 360 चाहिए क्योंकि हम लोगों को ये एंगल बेटा यहाँ पे गिनना है कि ये एंगल कितना है। Exterior. वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब हमारा एक्सटीरियर एंगल 120 है, तो ये 120 हुआ, ये 120 हुआ और ये 120 हुआ। लेकिन जब मैं बेटा अंदर के ट्रायंगल को देखूंगा 180 तो ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल? फैंटास्टिक। तो व्हाई दिस इज अ डबल फैंटास्टिक क्वेश्चन। अगर आप 120 120 120 ऐड करते हो तो अपना स्कूल लेवल नॉलेज फ्लॉप जाता है, क्योंकि स्कूल में तो ये सीखा था कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो ठीक है ना, ये 120 एक्सटीरियर एंगल था, तो आप अंदर के साइड पे देखोगे तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगेन द रिस्की ऑप्शन इज देयर इज वन ऑप्शन व्हिच इज 60 डिग्री एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, बराबर? फर्स्ट ऑप्शन देखो, दैट कैन नॉट बी द आंसर। आंसर इज बॉम्बे 120 डिग्री एंड इक्विलैटरल। व्हाई 120? थीटा इज 2 पाई बाय n। मतलब अपना ओरिजिनल डायग्राम ये है। अच्छा, इसमें भी देखना है ना बेटा, तो आप ये वेक्टर के टिप को ज्वाइन करो, ये वेक्टर के टिप को आप बाहर से ज्वाइन करो ऐसे, यू विल गेट इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या लॉजिक होगा उसका? सपोज ये साइड मैंने ज्वाइन किया बेटा, ये एंगल 120 है, तो ये दोनों 30 30 हुए, फिर ये दोनों 30 30 हुए, फिर ये दोनों 30 30 हुए, 30 and 30 60, 30 and 30 60, 30 and 30 60। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। डबल रिस्की ऑप्शंस। पहले आपको ये डिसाइड करना है कि बॉम्बे है कि दिल्ली है, राइट? और आपको ये भी डिसाइड करना है तो बॉम्बे है तो ए क्यों नहीं है, क्योंकि हमने तो स्कूल में सीखा था सम ऑफ ऑल द एंगल्स इन अ ट्रायंगल इज 180। तो ये एक्सटीरियर एंगल है, इसलिए वो टोटल 360 होना चाहिए। वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ लामिस थ्योरम, राइट? तो लिख के रखो बेटा, 34 and 35 बोथ आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस ऑन लामिस थ्योरम। अभी मैंने संडे एग्जाम में जो पूछा ना लामिस थ्योरम, मेरे पास और कुछ पूछने के लिए नहीं था, इसलिए सिंपल वाला पूछा। P अपॉन साइन अल्फा इज Q अपॉन साइन बीटा इज R अपॉन साइन गामा। PCB में होगा शायद वो, और CET में भी था, लेकिन JEE मेंस में नहीं था। JEE मेंस में उतना सिंपल सिंपल पूछूंगा ही नहीं। इसलिए बेटा क्योंकि अभी तक पूरा नहीं हुआ था अपना, अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अभी मेरे पास चांस होगा ना, तो मेरा सजेशन सुनो, मेरा सजेशन सब JEE वालों को बेटा ये भी रहेगा कि आप अपना जो फ्रेंड है ना जो CET देता है, वो पेपर भी एक बार फोटोकॉपी करके ले लो। यू विल हैव कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस। JEE स्टूडेंट जिन्होंने ऑप्ट किया है ना, एक बार बेटा CET का पेपर भी ले लो संडे एग्जाम होने के बाद अपने फ्रेंड से, उसको जेरॉक्स करा लो, क्वेश्चन पेपर एंड सॉल्यूशन, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, व्हाट इज न्यू, राइट? सर इसमें C और D तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए इक्वल साइड्स होते ही नहीं होता। परफेक्ट, इक्वल साइड कभी बना ही नहीं। इक्वल साइड बना ही नहीं सकते, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में इक्वल साइड बनेगा ही नहीं, राइट? परफेक्ट। तो C और D बाय डिफॉल्ट गया। सो सबसे रिस्की ऑप्शन था ए, सबसे रिस्की ऑप्शन था ए। क्वेश्चन नंबर 35, अनदर मास्टरपीस ऑफ लामिस थ्योरम। एकदम ध्यान से सुनो बेटा। There are three forces P, Q and R given acting on a particle. Angle between P and Q and that between Q and R are respectively 150 and 120. Everybody here. P, Q. सोचो R 90 डिग्री पे होना चाहिए कि नहीं P के? बिकॉज अगर ये एंगल 1 कितना है, पहला वाला एंगल कितना है? 120। ये वेक्टर P है, ये वेक्टर Q है, और ये वेक्टर R है। तो बेटा अगर ये एंगल 1 कितना 150 और ये एंगल 120 है, तो बाय डिफॉल्ट इसको 90 होना पड़ेगा। यस और नो? नाउ रिकॉल योर मेमोरी, लामिस थ्योरम, व्हाट वाज इट? वाज इट P अपॉन साइन अल्फा should be equal to Q upon sin beta
should be equal to r upon sin gamma. Most important was to decide who is alpha, who is beta and who is gamma. याद करो मैंने शॉर्टकट सिखाया था. ये p है ना p, उसका उल्टा डायरेक्शन में खींचो उसको. That should become alpha. p के बिल्कुल नीचे कौन है? sin alpha. तो p का उल्टा डायरेक्शन में is alpha. Right? Anyways, this is the angle between q and r. Is alpha. Right? बाद में r को उल्टा डायरेक्शन में खींचो. Right? तो r के नीचे कौन है? गामा. That means this angle is gamma. तो obviously this angle becomes beta. समझा कि वापस बोलूं? अभी क्रॉस चेक करते हैं. क्रॉस चेक. P Q R अल्फा बीटा गामा. दो की मारामारी में तीसरा आंसर. चेक करो P और Q के बीच का एंगल गामा है कि नहीं? P और Q के बीच का एंगल गामा है कि नहीं? P और R के बीच का एंगल बीटा होना चाहिए कि नहीं? P और R के बीच का एंगल बीटा है कि नहीं? Yes or no? So now substitution. Now substitution. Can I say therefore P upon sin alpha. Alpha is 120. P upon sin 120 is equal to Q upon sin 150 is equal to R upon sin 90. Therefore P upon everybody. Can I write sin 60? Sin 120 and sin 60 are same. Why? Sin of theta is same as sin of 180 minus theta. Sin of an angle and sin of supplement of the angle are same. This is equal to Q upon sin 30 and this is R upon sin 90. Yes or no? So this is P upon root 3 by 2. This is Q upon. मेरा कुछ गड़बड़ हुआ? P upon पहला एंगल कौन सा है? पहला 150 है ना बेटा, मैं वही पूछा था. फर्स्ट एंगल 150 है, सेकेंड एंगल 120 है. सर P and Q के बीच में 150 है. P and Q के बीच में 150 है. वो करेक्ट था. एक मिनट. तो शायद मुझे मैं एक बार वापस डायग्राम चेक करता हूँ. ओके वेट प्लीज वेट. जस्ट क्रॉस चेक करो. एंगल बिटवीन P and Q is 150. बराबर. एंगल बिटवीन Q and R is 120 and angle between P and R is 90. बराबर. तो ये एंगल का एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड वाला एंगल अल्फा हुआ. यस और नो? ये एंगल R का एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड वाला गामा हुआ और इसका ऑपोजिट साइड वाला बीटा हुआ. मतलब ये बराबर लिखा था मैंने. बीटा का वैल्यू 150 है. हाँ बीटा का वैल्यू 150 है. बीटा का वैल्यू. हाँ इधर मेरा मिस्टेक हुआ. आई एम सो सॉरी. मुझे लगा किधर तो मेरा मिस्टेक हुआ. बराबर. बीटा का वैल्यू 90 है और ये वैल्यू बेटा 150 है. बराबर ना? ओके नाउ इट इज करेक्ट. नाउ इट इज करेक्ट. थैंक यू सो मच. sin 120 sin 60, sin 90 sin 90 only and sin 150 is sin 30. Right? So P upon sin 60 is root 3 by 2 is Q upon 1 is R upon half. Denominator of denominator is numerator, so this is 2P upon root 3 matches with Q upon 1 matches with 2R upon 1. अब एकदम ध्यान से कॉमन सेंस अप्लाई करो बेटा. मेरे पास 3 नंबर है 3 upon 5 4 upon 5 5 upon 5. मतलब इनके डिनोमिनेटर सेम है तो मैं न्यूमरेटर का रेशियो 3:4:5 बोल सकता हूँ कि नहीं? या तो फिर मैं न्यूमरेटर को सेम कर दूं तो मैं डिनोमिनेटर मैच कर सकता हूँ. चेक करो प्लीज. दिस इज 2P, दिस इज 2R. व्हाट इफ दिस बिकम्स 2Q? Then I say now I can find my answer. This is 2P upon root 3, but this was Q upon 1. That means there was imbalance. And this is 2R upon 1. तो multiply and divide by 2. तो ये कितना हो गया? 2P. ये कितना हो गया? 2Q. ये कितना हो गया? R. And therefore what is the ratio? Root 3 is to 2 is to 1. क्वेश्चन पूछने का स्टाइल मस्त था. परफेक्ट टिपिकल एग्जांपल ऑफ लामिस थ्योरम. परफेक्ट टिपिकल एग्जांपल ऑफ लामिस थ्योरम. चलो बेटा गो थ्रू. So 35th में ट्रायंगल के फॉर्म में कर सकते हैं ना 35th. हाँ ऑफ कोर्स. तो कैसे होगा? मैंने किया पर एक्सटीरियर एंगल होगा बेटा. ये तेरा P और Q के बाहर का एंगल होगा. ये तेरा P है और ये तेरा Q है तो ये एंगल बेटा 150 होगा. फिर ये Q है और ये R है तो ये तेरा 120 होगा और ये एंगल 90 हो जाएगा. मतलब ये थोड़ा मुझे ऐसा करना पड़ेगा. होगा सेम सेम. तो ये तेरा 150 है तो ये बेटा 30 हो गया.
ये 120 है तो ये 60 हो गया और ये 90 सेम एकदम बट माय सजेशन वुड बी दिस इज अ बेटर मेथड अंडरस्टूड 36 another very beautiful question way of asking is very nice a force of 20 Newton is acting on a body of mass 4 kilogram in xy plane मतलब ये फोर्स x एक्सिस पे भी नहीं है y एक्सिस पे भी नहीं है बीच में कहीं पे है राइट सो दिस इज x एक्सिस this is y axis this is x axis this is y axis and the force is somewhere over here the force is somewhere over here this force is how much 20 Newton I think so and suppose the mass is placed here the mass is 4 kilogram right the angle the direction of the force is making angle cos inverse of 3/5 with x axis ये वेक्टर है the direction of the force is making angle theta with x axis and what is that theta is it cos inverse of 3/5 तो बेटा कॉमन सेंस अप्लाई करो therefore what is cos theta therefore 3/5 if cos theta is 3/5 apply common sense and tell me what should be sin theta I am so proud of you very good sin theta 4/5 कैसे आया सबको समझा कि प्रूफ करो sin square theta plus cos square theta is 1 if I try to visualize the triangle will the triangle be like this ये cos theta है तो बाजू वाला साइड कौन हुआ बाजू वाला साइड cos component very good और सामने वाला साइड कौन हुआ sin component very good तो अगर ये फोर्स है ये तो बेटा ये कौन हुआ fx और ये कौन हुआ fy तो what is fx what is fx f cos theta f मुझे ऑलरेडी पता है 20 and this is 3/5 so is my answer 12 what about fy is it f sin theta so is it 20 into 4/5 so what is fy is it 16 मुझे ay पूछा गया ay acceleration along y axis check करो please can I say acceleration along y axis is force along y axis upon m so is it 16/4 my answer should be 4 now check the beauty of this absolute beauty of this मतलब एक लाइन में कर सकते थे आप ना इट वाज माय ड्यूटी एज अ टीचर टू टीच यू एवरीथिंग लेकिन बेटा ये 3 4 5 का ट्रायंगल हुआ कि नहीं तो cos थीटा इज 3/5 तो ये जो मुझे ग्रीन वाले दिख रहे हैं ना वो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट्स है तो व्हाट इज x कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन व्हाट इज y कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन एंड व्हाट इज द ओवरऑल एक्सीलरेशन वेरी गुड तो ग्रीन वाला जो ट्रायंगल बना ना वो एक्सीलरेशन का ट्रायंगल बना मास इज 4 3 4s are 12 4 4s are 16 5 4s are मतलब अगर मुझे x कंपोनेंट ऑफ फोर्स पूछा होता तो मेरा आंसर 12 होता y कंपोनेंट ऑफ फोर्स पूछा होता तो मेरा आंसर 16 होता और ओवरऑल फोर्स इज 20 लॉजिक समझा तो मेरा जो ग्रीन मार्किंग है वो कौन है इट इज द वेक्टर डायग्राम ऑफ एक्सीलरेशन अगर मैं वो ग्रीन मार्किंग को मास से मल्टीप्लाई कर दूं एंड देन व्हाट आई गेट विल बी द फोर्स का ट्रायंगल समझा सुपर श्योर सॉल्यूशन चेक करो बेटा जो मैंने दिया है आपको सॉल्यूशन चेक करो प्लीज वो सब तो बेटा फिजिक्स और केमिस्ट्री का फाइल है फिजिक्स में बहुत सारा मटेरियल आने वाला है मुझे लग रहा है तब तक आपके पास प्रैक्टिस पेपर 1 से लेके 6 तक के सारे सॉल्यूशंस हैं अभी फिर मैंने असाइनमेंट 5 का हैंड रिटन सॉल्यूशन दिया था और भी शायद एक तो आपको असाइनमेंट का दिया था आई डोंट नो फिर आपके पास आईपैड नोट्स है फिर 3 संडे के एग्जाम हो चुके राइट आई थिंक यस्टरडेज एग्जाम वाज द थर्ड एग्जाम राइट हर 5-6 एग्जाम के बाद रिपोर्ट कार्ड बनता है तो फिजिक्स का है ना घर पे एक बॉक्स फाइल बना के रखो क्लास में ऐसा पतला वाला फाइल कैरी करने का राइट बिकॉज अ पर्टिकुलर चैप्टर इज गोइंग ऑन घर पे जाके ये सब
उधर लोड करने का, जब वो चैप्टर खत्म हो जाए बाद में. आर यू गेटिंग दिस? यू विल हैव लॉट ऑफ थिंग्स एज द सिलेबस गोज ऑन. माइंड यू, फिजिक्स का ऐसा बॉक्स फाइल 2-3 बनेगा. The reason your Sunday papers, your mock test papers, your practice papers, your check your graphs papers, extra things which we give you, iPad notes. बाद में जब आपका final prelims शुरू होगा, तो final prelims will be approximately at least 40. 20 prelims at the center, 20 prelims as home test, and 10 prelims as extra home test. So much, yeah बेटा, तो ही तो आपको final paper एकदम easy लगेगा. अभी जैसे आपका बोर्ड एग्जाम हो गया ना, तो बाद में एवरी वीक वी कीप 2 एग्जाम्स, वेडनेसडे संडे, वेडनेसडे संडे, वेडनेसडे संडे. फिर जब लास्ट 2 वीक बचते हैं ना, उसमें हम लोग 3 एग्जाम रखते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे. तो ऐसा मिलके 20 से 24 मॉक टेस्ट पेपर्स होता है. सो दैट गिव्स यू द कंप्लीट फील कि मेरा फाइनल पेपर कैसा होगा. और वो इतनी बार तुम लोग कर चुके हो ना कि फाइनल पेपर में फिर वो डर हट जाए, हाँ यार ये तो संडे एग्जाम, इससे टफ पेपर तो माइंड सेटल था वैसे. तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज बेटा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. नो पैम्परिंग वन सेल्फ. कल शाम को मुझे 2-3 मैसेज आए कि सर इतनी बारिश हो रही तो कल क्लास होगा कि नहीं. तो मेरा एक ही आंसर होता है, ट्रेन चालू है तो क्लास चालू है. ट्रेन एकदम बंद हो गया मतलब इट इज रियली बैड रेन, राइट. ट्रेन चालू है तो क्लास चालू है. थोड़ा भले हम लोग आगे पीछे होंगे, 5-10-15 मिनट लेट हो गए, दैट इज अंडरस्टैंडेबल बिकॉज रोड पे बहुत ट्रैफिक होता है. तो दैट इज ओके. घर पे नहीं बैठने का बेटा, घर पे नहीं बैठने का. क्योंकि जो लाइव टीचिंग होती है ना, अभी जैसे ये सारे लेक्चर्स तो रिकॉर्ड नहीं हो रहे ना बेटा, यही लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है. दूसरे बैच में किसी बच्चे ने मुझे और कोई डाउट पूछा तो पता चला उसका डिस्कशन चल रहा है. तो व्हेन यू आर हैविंग लाइव इंटरेक्शन विद सर, वो एक अलग ही मजा है. बाकी तो बेटा इंटरनेट पे सब कुछ मौजूद है. मेरे लेक्चर क्यों सुनते हो? IIT प्रोफेसर के सुनो, MIT के प्रोफेसर के सुनो, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 1 इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड फॉर फिजिक्स. लेकिन वो क्या बोल रहा है समझ में ही नहीं आएगा. देयर यू नीड एन आंसर ओनली देन, राइट. हम लोग वो लेक्चर सुनते हैं ना जब हम किधर अटक जाते हैं, तो हमको भी उनकी कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती. फिर बुक लेके बैठना पड़ता है, यार ये क्या बोल के गया, अच्छा इसका मतलब ये होता है. ट्रस्ट मी, बिकॉज दे आर रियल जीनियस पीपल. आई मीन दे आर साइंटिस्ट्स, एब्सोल्यूट जीनियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड, नॉट ऑफ इंडिया, राइट. तो बेटा इंटरनेट पे तो सब कुछ है, फिर क्या फ़ायदा है. और उसमें 100% डिस्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि हम लोग फिर लेक्चर्स नहीं देखते ना, खाली बीच में यूट्यूब आता है, स्काइप आता है, फिर फेसबुक आता है, इंस्टाग्राम, सबसे ज़्यादा तो इंस्टाग्राम आता है, थ्रेड्स आता है. स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस. समझा बेटा? सो विद दिस ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर पेंडिंग फ्रॉम वेक्टर्स ओवर, चैप्टर वेक्टर्स ओवर. So now we are starting with a new chapter. Boys! Any questions from this? As far as heat is concerned, is that part coming? आ रहा है नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब. हीट पार्ट बेटा हम लोग 5 पार्ट में डिवाइड करने वाला. आपका ये जो बुक है ना, इसको मैं 5 पार्ट में डिवाइड करने वाला हूँ. अच्छा, विदाउट फिर जब घर पे जाओ ना, प्लीज अपना नाम लिख लेना इधर. रीजन, देयर विल बी इवेंट्स वेयर आई विल आस्क फॉर द सबमिशन ऑफ दिस बुक टू चेक द होमवर्क. तो ये बुक सेम दिखते हैं, आप लोग प्लीज घर पे जाके अपना नाम इधर, सो दैट फाइंडिंग योर बुक बिकम्स वेरी वेरी इजी. Now, as far as your heat one is concerned, we are going to divide this in 5 parts. One is thermometry. Next is calorimetry. Next is thermal expansion in solids. Next is latent heat and specific heat. And finally, it is heat transfer. In vectors also you must have seen. I divided the chapter in small parts. पहले हम लोगों ने addition और subtraction of vectors किया, फिर सिर्फ उसका assignment किया. फिर हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन शुरू किया, उसमें भी 2 पार्ट में स्प्लिट किया. डॉट प्रोडक्ट, फिर सिर्फ उसका असाइनमेंट किया, असाइनमेंट नंबर 3. फिर सिर्फ क्रॉस प्रोडक्ट, उसके ऊपर 2 लेक्चर, असाइनमेंट नंबर 4. फिर एक्स्ट्रा कॉकटेल पॉइंट्स ऑफ सिनॉप्सिस, Lami's theorem and इक्विलिब्रियम, व्हेन मल्टीपल फोर्सेस आर एक्टिंग,
then that 2v sine theta by 2, when the vector is rotated, we did multiple points. And then HOTS means miscellaneous exercise was combination of all. Mind you, HOTS का मतलब है बेटा at least 10 to 12 different chapters का questions I have imported from there and I have put those questions in HOTS. मतलब actually that question belongs to maybe the chapter laws of motion, kinematical equations, motion in a straight line, motion in plane, rotational dynamics, electrostatics. अब जैसे फ्लक्स वाला क्वेश्चन था A bar dot B bar, तो E is electric field, B is magnetic field. अब वो बेटा सेक्शन 2 में आता है. That means as per your NCERT book it is 12th standard. लेकिन फिर मैं अभी ये नहीं बोल सकता कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक रुकेंगे, तब तक हम लोग फ्लक्स का क्वेश्चन ही नहीं करेंगे. अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होगी ना, जब आप बाहर की बुक लेके बैठोगे ना और मैं बोलूँगा ना लेट अस वेट फॉर 12th स्टैंडर्ड, लेट अस वेट फॉर लेट अस वेट, तो पता चला आधा चैप्टर आपको आता ही नहीं. मैंने याद करो एक ही क्वेश्चन होल्ड पे रखा है, एक ही टाइप होल्ड पे रखा है, वेट फॉर डेरिवेटिव्स. एक ही टाइप होल्ड पे रखा है मैंने, वेट फॉर डेरिवेटिव्स. आई विल वेट इफ मैथ्स डिपार्टमेंट इज स्टार्टिंग दैट ऑन टाइम. If maths department is not starting, no problem. Either I myself or maybe my sir will introduce some basics of derivatives. Very very simple formula. Okay. Now as far as this chapter is concerned, today we are going to do basics only. Books एकदम बंद बेटा. Your school level knowledge about heat. What is the difference between heat and temperature? Heat is a form of energy. Heat is a form of energy, whereas temperature is feeling of that energy. It is sensation. It is degree of hotness of a body. So what is the meaning of heat? It is the form of energy. Whereas what is the meaning of temperature? Sensation of that. या तो it decides degree of hotness of a body. That means how hot or how cold the body is. Now mind you, as far as hotness is concerned, it is a relative term. It is a relative term. Please get up. Please get up. Good. Perfect example. Now suppose both of you sit down. I am giving the statement. I am giving the statement. I am tall. I am giving the statement. I am tall. Mind you, my statement is incomplete because the question will come in your mind. Sir, with respect to whom? Get up. Now my statement makes sense that I am tall. Get up, please. Now my statement fails because now if I say I am tall, my answer is wrong. Get up, please. Now when I am giving statement, my complete statement will be I am taller compared to him, but I am shorter compared to him. That means it's a relative thing. It is a relative thing. Suppose I am having a bath containing ice cubes. I am having a vessel containing hot water. I am having a vessel containing ice cubes. And I am having water at room temperature. The third bucket. मैं मेरा एक हाथ हमेशा वो वाटर में रखता हूँ, वाटर एट रूम टेम्परेचर. एक टाइम में हॉट वाटर में हाथ रखता हूँ, विच इज अबाउट 65 डिग्री सेल्सियस, 60 डिग्री सेल्सियस. नॉट वेरी हॉट, अदरवाइज योर स्किन विल बर्न. यू कैन नॉट यूज बॉइलिंग वाटर, राइट. इट इज 60-65, मतलब विंटर में हम लोग नहाने के लिए जो पानी गर्म करते हैं वो, राइट. अगर मैंने अपना एक हाथ इधर रखा हॉट वाटर में, तो ये पानी मुझे ठंडा लगेगा. दैट मीन्स माई ब्रेन अंडरस्टैंड्स that this is colder because my brain is showing me that this is hot, this is really hot, right. If I transfer my hand from here to here, now this hand is in ice cubes, right. So now I feel this is hot. इसकी कंपैरिजन में ये मुझे कोल्ड लग रहा था, ये सेम बंदा इसके कंपैरिजन में मुझे हॉट लग रहा है. नयन सर इसकी कंपैरिजन में टॉल लग रहा था, लेकिन वही नयन सर इसकी कंपैरिजन में शॉर्ट लग रहा था. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपैरिजन, इट इज अ रिलेटिव टर्म. My simple question to all of you. एक जन को बेटा 93 मार्क्स मिलता है, राइट, और एक जन को 82 मार्क्स मिलता है. Who is scholar? No, your answer is wrong. क्योंकि मैंने आउट ऑफ तो बोला ही नहीं था. इसको 180 में से 93 मिलता है नीट, और इसको फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में 82 आउट ऑफ 100 मिलता है. अभी बोलो कौन स्कॉलर? ये बात. That means out of how much is important? ज्यादा कौन है, 3 की 40? अभी आउट ऑफ हाउ मच नहीं है, ये $3 है और ये 40 रुपीज है. तो नाम क्या है? Moral of the story, if they are just numbers and then when you say 40 is greater than 3, you are correct. But if they are physical quantities,
then they have to be brought in the same system of units. या तो मैं $3 को 85 रुपीज से मल्टीप्लाई करूंगा, तो 85 3 will be 255. मतलब ये दोनों को रुपीस में कन्वर्ट करके फिर मैं कंपैरिजन दूंगा, या तो दोनों को डॉलर्स में कन्वर्ट करके फिर कंपैरिजन दूंगा. ऐसे में डायरेक्ट नहीं बोल सकता 3 is greater than 40 because the currency values are not the same. Logic समझा बेटा? Is it clear? I repeat, if they are just numbers, then you can blindly say 3 is less than 40. But if they are physical quantities, then first you have to check whether they are in the same system of units or no. If no, bring them in the same system of units and then your answer will be correct. Is it very, very clear? Next, what is the unit of heat energy? Joule. The unit will always be joule. या तो right over here the unit will be degree Celsius or degree Fahrenheit or Kelvin. Now very, very, very important. Joule is always the official unit of energy, always. But chapters wise sometimes these units differ. For example, if I am discussing the chapter of heat, then kilocalorie and calorie are more convenient. हम लोग जब वॉक पे जाते हैं तो हम लोग ये बोलते हैं कि 7 किलोमीटर वॉक करेंगे तो हमारा इतना कैलोरीज बर्न होगा. हम लोग अगर ये बिस्किट का पैकेट खाएंगे तो हमारी बॉडी में इतना कैलोरी एनर्जी आएगा. वी नेवर टॉक इन टर्म्स ऑफ जूल या तो अर्थ. दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड कन्वीनियंट यूनिट. किलो कैलोरी और कैलोरी इज कॉल्ड कन्वीनियंट यूनिट. व्हाट इज कन्वीनियंट यूनिट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी? किलो कैलोरी या तो कैलोरी. Very, very, very important concept. 1 kilocalorie is approximately 4,200 joules. 1 kilocalorie. अब बेटा इसमें बहुत confusing close options देते हैं एकदम. ध्यान से देखो. 1 kilocalorie is 4,200 joule. 1 joule is 4,200 calorie. 1 calorie is 4,200 joule. 1 joule is 4,200 kilocalorie. मतलब चारों ऑप्शन में आपको 1 दिखाया मैंने, चारों ऑप्शन में 4,200 भी दिखाया. यस और नो? जूल इज एनकेएस, किलो कैलोरी इज एनकेएस फॉर हीट, इज सीजीएस, कैलोरी इज हीट सीजीएस, इज इन जनरल सीजीएस. Be it sound energy, light energy, heat energy, mechanical energy, kinetic energy, potential energy, total energy, oscillatory energy, vibrational energy, electromagnetic energy, any form of energy, official unit is always joule, right? And official CGS unit is always such that 1 joule is 10⁷ you know this, correct? तो इन्होंने बेटा चारों में सेम चीजें दिखाई. तो आपको ये देखना है कि जूल गोज विद किलो कैलोरी, then the number should be 4,200. अब ये डिसाइड करना है कि पहला वाला सही है कि चौथा वाला सही है. 1 किलो कैलोरीज 4,200 जूल सही है कि 1 जूल इज 4,200 किलो कैलोरीज सही है. माइंड यू वेरी सिंपल लॉजिक. K4 कम, J4 ज्यादा. द लॉजिक इज 1 और 4,200 में ज्यादा वाला नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 4,200. तो ज्यादा के साथ J जाएगा, कम के साथ K जाएगा. Similarly, 1 kilocalorie is 1,000 calorie. So 1,000 calories 4,200 joule. इसका मतलब 1 calorie is 4.2 joule. तो C4 कम, J4 ज्यादा, K4 कम, J4 ज्यादा. So what is the correct observation? 1 kilocalorie is approximately 4,200. अब ये मैं approximately क्यों लिख रहा हूँ? Because the correct conversion is 4185.5. The correct conversion as per the experiment conducted by Joule was 4185.5. So many a times in problems, you may see Joule's constant का value is 4185, 4180, 4190, 4200. In physics and chemistry both. मतलब ये सब numbers allowed है. Examiner ने जो दिया वो लेने का. I repeat, 4,150 they may give, 4,180 they may give, they may give exact 4,185.5, they may give 4190, they may give 4200. Is that clear? तो मैं इधर राउंड फिगर लिख रहा हूँ. So if 1 kilocalorie is 4,200 joule,
What can you say about 1 calorie? 4.2. Is it 4.2 joule? तो बेटा इधर एकदम सिंपल कन्वर्जन दे रहा हूं मैं, एकदम सिंपल कन्वर्जन. हाउ टू कन्वर्ट कम टू ज्यादा? मल्टीप्लाई बाय 4200, बिकॉज मुझे कम टू ज्यादा जाना है. हाउ टू कन्वर्ट ज्यादा टू कम? डिवाइड बाय 4200. ये बेटा हमेशा याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री बोथ, बिकॉज स्टूडेंट्स लूज मार्क्स. दे हैव डन प्रॉब्लम एकदम परफेक्टली, एक छोटा सा कन्वर्जन में गड़बड़ हो गया मतलब पूरा प्रॉब्लम गया. हाउ टू कन्वर्ट कम टू ज्यादा? मल्टीप्लाई बाय जूल्स कांस्टेंट. हाउ टू कन्वर्ट ज्यादा टू कम? डिवाइड बाय जूल्स कांस्टेंट. यहां तक समझा सबको? श्योर. नाउ वी आर गोइंग टू start with a topic called thermometry. Thermometry is that branch of heat which talks about different thermometers. Different thermometers. Is that clear? Before I start with that, open your book please. The very first question. Read the very first question. Page 1, first question. It's like a small story. It's like a small story from school. एक एक लाइन ध्यान से. और बेटा मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ आपके पास हाइलाइटर होना चाहिए. आज नहीं है ठीक है, नेक्स्ट टाइम से साथ में रखो. चलो एब्सोल्यूट साइलेंस, रिवाइज क्वेश्चन 1. Absolute silence, revise question 1. हो गया बेटा? Was it really simple? Very simple. You had already done this in school. Now, out of 5 parts of the chapter, as I told you, one is thermometry, other is calorimetry. Thermometry is the simplest, and calorimetry is the toughest. Calorimetry में क्या पूछते हैं बेटा? 100 gram of ice at minus 10 degrees Celsius is subjected to steam, 50 gram of steam at 127 degrees Celsius and is passing through this. Then what will be the temperature of water? एक साइड से बेटा steam condense होता है और एक साइड पे ice melt होता है, तो दोनों मिलके water बनता है. मैंने दोनों का mass अलग अलग दिया है, मैंने दोनों का temperature अलग अलग दिया है, and you have to see different stages. Ice at minus 10 is to be converted into ice at 0. Ice at 0 is to be converted into water at 0. And water at 0 is to be converted into water at theta. यहाँ पे steam at 127. It is to be converted to steam at 100. Then steam at 100 is to be converted to water at 100. And water at 100 to water at theta. मतलब you have to move some steps from here. You have to move some steps from here and you have to come in between. तो बेटा उसका एकदम मस्त स्टाइल दूंगा मैं कि एक ही स्टेप में कैसे मस्त आप वो प्रॉब्लम रिप्रेजेंट कर सकते हो. स्कूल में ना ऐसा स्टेप्स वाइज दिखाते हैं, तो दैट इज वेरी बोरिंग, वेरी वेरी बोरिंग. जब मैं एरोज वाइज दिखाऊंगा इट इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी. सो कैलोरीमेट्री वी कैन डू एट द एंड. वी विल ग्रेजुअली गो फ्रॉम इजी टू टफ. सो थर्मोमेट्री इज द इजीएस्ट ब्रांच. Thermometry is that branch of heat or thermodynamics which talks about how to design thermometers, how to calibrate thermometers.
And the basic most thermometer which we use in practical life is glass liquid thermometer. ये जो आप बेटा रोज के लाइफ में देखते हो ना वो वाला थर्मोमीटर है. Outside tube is the cylindrical tube, closed at both the ends, right? Inside there is one very thin glass capillary tube again, right? Why glass? Because it is transparent. Inside that capillary tube there is a bulb, and in that bulb you are taking mercury as a liquid. In old time thermometers there was alcohol taken. Now the problem with alcohol was its freezing point is very close to zero and its boiling point is just 78 degrees Celsius. So if you are using alcohol thermometer to read the temperature of something which is at around 90 degrees Celsius, 95 degrees Celsius, then the thermometer will blast. Reason, alcohol का boiling point only 78 degrees Celsius and you are going beyond that, right? So another drawback of alcohol was alcohol का refractive index is very close to refractive index of glass. For example, if I take glass, normal glass, sodium silicate glass, the refractive index is 1.5. Water का refractive index is 1.33. Glycerin का refractive index is about 1.38. Alcohol का refractive index is in this range only. तो जब दोनों का refractive index match होता है तो वो liquid rise हो रहा है fall हो रहा है मुझे बराबर से दिखेगा नहीं. I will have to try very hard कि इसमें water rise हो रहा है कि fall हो रहा है. It is something like एकदम transparent kind of foreign germ in your water. There are some bacteria ट्रांसपेरेंट होते हो आपको पता भी नहीं चलेगा. अमीबा ट्रांसपेरेंट होता है आपको पता भी नहीं चलेगा आपके पानी में जर्म्स, राइट? वाटर बॉर्न डिजीज में पता ही नहीं चलता है. तो यू टू ऑब्जर्व देम अंडर माइक्रोस्कोप तब जाके पता चलता है यार इसमें तो मूवमेंट है, मतलब ये कोई जर्म है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो प्रीवियसली अल्कोहल वाज यूज्ड बट देन देयर वर मेनी ड्रॉबैक्स. वन, its shining is almost matching with shining of glass, so it's very difficult for the observer to observe whether it is rising or falling. Next, its freezing point and boiling point, they give you very limited range. That means you can use these thermometers for very limited range of temperatures. On the other hand, when mercury was selected, mercury had many plus points. One, it is the liquid metal. If it was a solid metal, it cannot rise up or fall down. Mobility is not there. So mercury is a liquid metal. That is the advantage of that. Because it is a metal, it is a good conductor of heat. That means it gives response to heat energy. When the temperature is increasing, mercury will expand. When the temperature is falling, mercury will contract. That means rising up or going down of mercury in thermometer becomes easy. Yes or no? Best advantage of mercury is its freezing point is minus 39 degrees Celsius and its boiling point is plus 357 degrees Celsius. Alcohol का boiling point was 78 degrees Celsius. That means you can use it for a very wide range. Almost 400 का range मिलता है मुझे. 357 minus 39 is as good as minus 40. Yes or no? तो मुझे almost 400 degrees Celsius तक का range मिलता है. That means I can go to very hot place somewhere nearer to equator, Sahara Desert, Rajasthan. There the temperature are 52, 53. Dubai 54, Abu Dhabi, right? I can go to very cold places also. Siachen Glacier, Antarctica, Arctica. The temperatures are very low, but still this thermometer will work. If I go to minus 45, minus 50, for example in winter, real great winter, कनाडा का कोई तो एक पार्ट है जहाँ पे टेम्परेचर minus 41, minus 42 हो जाता है. नॉर्वे, डेनमार्क, स्कैंडिनेविया, राइट, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, वहाँ पे टेम्परेचर minus 45, minus 50 हो जाता है. There these thermometers will fail. Then you can use a thermometer which are called resistance wire thermometers. They can calculate the temperatures up to about minus 100 plus. मतलब minus 100, minus 110, minus 100. Lowest possible temperature is minus 273. वहाँ तक अभी तक कुछ मिला नहीं. अभी तक कुछ मिला नहीं. Right? So there are many advantages of mercury as a thermometric fluid. The question comes like this, कि why mercury is selected over to the other liquids as a thermometric fluid. These are the biggest advantages. It has metallic luster, shining surface. जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, डॉक्टर सबसे पहले दो चीजें चेक करते हैं. एक आपका बॉडी टेम्परेचर, एक आपका पल्स और एक आपका बीपी if required. डॉक्टर सबसे पहले ये करेगा. Yes or no?
आपका पल्स नॉर्मल चल रहा है कि नहीं. इट शुड बी 1.2 हर्ट्ज, दैट मीन्स 72 पर मिनट, 72 बीट्स पर मिनट. दैट्स अ नॉर्मल ह्यूमन हार्ट रेट. अपने स्ट्रेसफुल लाइफ में अब ये 80-82 होगा तो भी डॉक्टर इसको नॉर्मल ही गिनते हैं, बिकॉज वी आर इन अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी. हम लोग हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, कभी होमवर्क का स्ट्रेस, कभी जल्दी पहुंचने का स्ट्रेस, कभी ट्रेन पकड़ने का स्ट्रेस. सो इट इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर डॉक्टर्स. मतलब पहले जो बीपी का रेंज 80-120 होता था ना, अब अगर ये 80-140 भी है तो 140 भी आपका नॉर्मल बीपी ही गिना जाता है, राइट. इट इज़ नथिंग टू वरी अबाउट. So that BP machine which the doctor is using is called sphygmomanometer, right? यहाँ पे एक पट्टा बांध के तो उसमें भी बेटा मर्क्यूरी ही होता है. Same thing, same. There are advantages of mercury to be used as a thermometric fluid. Yes or no? Now there are 3 types, basic 3 types. Actually there is 4th type also. That is called Rankine scale, Rankine degree capital R, but it is outdated now, so nobody studies that. This is used in day-to-day life. People like us. This is used compulsorily by medicos, doctors, professionals. In medical science only, degree Fahrenheit. And this is used at industry level. Science, research, everything. The most perfect scale. The most perfect scale is Kelvin scale. Yes or no? Now, how do they design the thermometer? How do they design the thermometer? एकदम ध्यान से. This is a glass tube taken. इसके ऊपर कुछ भी कैलिब्रेशन नहीं है, कुछ भी कैलिब्रेशन नहीं है. सिर्फ ये ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब है, यहाँ से क्लोज्ड है, यहाँ से क्लोज्ड है और अंदर एक कैपिलरी ट्यूब है. इसके ऊपर मार्किंग नहीं है, इसके ऊपर मार्किंग नहीं है और मर्क्यूरी एकदम नीचे है, नीचे. Then there is one small groove over here. Do you see this? Right? ये कैपिलरी ट्यूब ऐसा नहीं है, ये कैपिलरी ट्यूब ऐसा नहीं है, राइट. ये ऐसा है और बाद में यहाँ पे बल्ब है. दिस इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन. दिस पोर्शन इज कॉल्ड कॉन्स्ट्रिक्शन. अब ये इसलिए होता है कि when the doctor is taking your reading or maybe you are measuring temperature of some hot body, mercury rises up. अभी जैसे आपने वो हॉट बॉडी के कांटेक्ट में से हटाया, mercury will tend to go down. तो फिर आप गलत रीडिंग लोगे. 50 डिग्री सेल्सियस था, मैंने जैसे ही बाहर निकाला वो 48 हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है 48 है, तो 50 पे रुकना चाहिए. दैट्स व्हाई देयर इज अ नॉच हियर, राइट. तो 50 पे रुकेगा. अब मैंने रीडिंग ले लिया 50. दैट मीन यू मस्ट हैव सीन डॉक्टर्स डूइंग दिस. दैट मीन्स दे आर सेंडिंग दैट मर्क्यूरी बैक टू द ओरिजिनल सो दैट नेक्स्ट पेशेंट्स बॉडी टेम्परेचर कैन बी टेकन. यस और नो? नाउ द एडवांटेज इज मर्क्यूरी डज नॉट स्टिक टू ग्लास, बिकॉज इफ इट गेट्स स्टक टू ग्लास. मैंने इसका बॉडी टेम्परेचर लिया, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट. अब इसका बॉडी टेम्परेचर लिया 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आया, मतलब इसको माइल्ड फीवर. ओके, अभी वही टेम्परेचर मैंने इसके लिए यूज किया तो पता चला मर्क्यूरी वापस गया ही नहीं था, तो इसको फीवर है ही नहीं, तो भी मुझे लग रहा है इसको 101 फीवर है. तो व्हेन आई गो फ्रॉम वन पेशेंट टू द अदर पेशेंट, आई शुड डू दिस. दैट मीन्स मर्क्यूरी इज गोइंग बैक टू द बल्ब एंड नाउ इट इज used for the other patient. That's why this constriction is there, right? Now how these points are decided? पहले ये मार्किंग है ही नहीं. सबसे पहले ये ग्लास ट्यूब को they will put in a bucket containing cubes of ice. Cubes of ice का टेम्परेचर है सपोज -10 डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब ये मर्क्यूरी का टेम्परेचर नीचे जा के -10 तक जाएगा. Then they will allow that ice to melt. When the ice melts, it is happening at 0 degree Celsius. Mind you, the heat supplied is used in 2 ways. टेम्परेचर बढ़ता है तो स्टेट चेंज नहीं होता है, और स्टेट चेंज होता है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होता. ओनली वन थिंग विल हैपन एट अ टाइम, ओनली वन थिंग. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस और मुझे इसको स्टीम एट 110 में कन्वर्ट करना है, तो ऑब्वियसली मैं इसको बर्नर पे रखूंगा, हीट करूंगा. Ice at -10 will be first converted into ice at 0. Ice at 0 will be then converted into water at 0. Water at 0 will be then converted into water at 100. Water at 100 will be then converted into steam at 100. And steam at 100 will be then converted into steam at 110. इसका मतलब ये हुआ कि when there is change of temperature, there is no change of steam.
When there is change of temperature, there is no change of state. When there is change of temperature, there is no change of state. But when there is change of state, there is no change of temperature. Check. When there is change of state, there is no change of temperature. That means it will definitely go in these steps only. Change of temperature, change of state, change of temperature, change of state, change of temperature. So when there is change of temperature, the heat supplied by you is explained by specific heat. And when there is change of state, it is explained by latent heat. And this latent heat also in the field of science is called hidden heat. Hidden heat because it is not recorded by the thermometer. जब change of state होता है बेटा, तब change of temperature होता ही नहीं है. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा है. हो रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है. Because when there is change of state, there is no temperature changing. That means the thermometer is not showing me any rise of temperature or any fall of temperature. That's why it is also called hidden heat. That's why it is also called. तो सबसे पहले बेटा इसको melting ice में रखते हैं. Melting ice में. So when ice is melting, या तो water is freezing, there will be temporarily some moments when there is no rise in temperature or fall in temperature, because it is undergoing change of state. So when it is undergoing change of state, there is no change of temperature. तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आके मर्क्यूरी रुक जाता है. तो जब वो रुक जाता है, मैं 10, 15, 20 सेकंड के लिए देखता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, क्या कुछ भी नहीं हो रहा है. दैट इज माय लोएस्ट पॉइंट. दैट इज कॉल्ड लोएस्ट पॉइंट. इसको बोलते हैं बेटा LFP. क्या बोलते हैं? LFP का मतलब होता है लोअर फिक्स पॉइंट. अब मैं इसको बॉइलिंग वाटर में रखूंगा. मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, मर्क्यूरी बढ़ते जाएगा ऊपर. 100 डिग्री सेल्सियस पे आके एक स्टेज आएगा जब मुझे 10, 15, 20, 25 सेकंड का मार्जिन मिलता है कि वहां पे टेम्परेचर राइज भी नहीं हो रहा है, फॉल भी नहीं हो रहा है. क्यों? Because now water at 100 is trying to change to steam at 100. That means there is change of state. Means there is no change of temperature. So this is my another fixed point, and this is called upper fixed point. This is called upper fixed point. अब मैं क्या करूंगा? ये दोनों पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिया. अभी मैं इसके ऊपर स्केल रखूंगा. स्केल, क्योंकि थर्मोमीटर में अलग अलग साइज का बना सकता हूं. थर्मोमीटर मेरा ये साइज का हो सकता है, थर्मोमीटर मेरा इससे लॉन्ग हो सकता है, थर्मोमीटर मेरा इससे भी लॉन्ग हो सकता है. कोई बात नहीं. अगर ये थर्मोमीटर में बेटा ये 0 था और ये 100 था, तो इसको मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. अगर मेरा थर्मोमीटर का साइज बड़ा है, राइट, तो ये 0 था और ये 100 था, तो ठीक है, इसको मैं 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूंगा. कहने से एवरी स्मॉल पार्ट इज नथिंग बट 1 डिग्री सेल्सियस. यस और? तो ये मैं सिर्फ डिग्री सेंटीग्रेड वाले थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं. ये मैं सेल्सियस थर्मोमीटर की बात कर रहा हूं. Is it divided into 100 equal parts? Yes or no? Trust me, मुझे ये रिकॉर्ड नहीं करना है. I will throw you out of the class very soon. Every damn time bloody you are sleeping. Get up, idiot! You are talking to your son. Every damn time you are sleeping. You want to see the recording? Why the hell you come to the class? Why the hell are you wasting hard-earned money of your parents? हाँ? मैं जब तुझे स्टैक कर रहा था तभी तुझे समझ में आ जाना चाहिए कि सर गुस्से में. समझ में आया? मुझे ये सब बोलना नहीं था वीडियो में. This is the lastest warning I'm giving you. I'll call your parents. I'll throw your check on your face. Get lost. Join somebody else. I don't want this kind of students in my class. They have to be very dedicated and focused. If you can't cope up with the stress of science, nobody told you to take science forcefully. Am I right? Neither your parents nor me nor anybody in the world. It is your choice. So respect your choice. Right? So this is called Celsius thermometer. This is called Celsius thermometer, and this is divided in 100 equal parts. Can I say every part will be 1 degree Celsius? Yes. Every part will be 1 degree Celsius.
The same mechanism we are going to do when we design Fahrenheit scale and when we design Kelvin scale. क्योंकि इसमें मार्किंग का स्टाइल थोड़ा अलग है. इसका लोअर फिक्स पॉइंट है 32 डिग्री फ़ारेनहीट और इसका अपर फिक्स पॉइंट है 212 डिग्री फ़ारेनहीट. तो 32 और 212 के बीच में 180 का डिफरेंस है. 180. दैट मीन्स डिग्री फ़ारेनहीट में the thermometer is divided into 180 equal parts. Likewise, when we go for Kelvin scale, the lower fixed point is 273.15 and the upper fixed point is 373.15. So again there are 100 equal parts. बराबर? तो बेटा इसका कैलिब्रेशन का स्टाइल अलग अलग है. आपको फिलहाल ये याद रखना है कि there are 3 types. Celsius used by laymen like us. Fahrenheit compulsorily medical professionals, nurse या तो डॉक्टर. And Kelvin scale in industries and research and all that. Is that clear? Read question number 2 please. मर्क्यूरी स्टेबल है, स्टेबल टेम्परेचर. Do you really want to see angry Nayan sir? Seriously? ये वीडियो पर एक्चुअली भेजता हूँ पेरेंट्स को. मुझे अभी मालूम पड़ा अर्पित बाला करके कोई तो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है, उसने ऐसे ही केस स्टडी निकाला कोरोना टाइम पे और बोला कि हाउ डू द प्रोफेसर्स बिहेव, शुड द प्रोफेसर बी स्ट्रिक्ट और राइट. तो पता नहीं लोग मेरे फनी मोमेंट्स तो रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन किसी स्टूडेंट ने हुआ ना मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड करके वो अर्पित बाला को भेजा कि देखो ये सर हमको बहुत डांटता है. उसको लगा नायन सर को बदनाम करेगा, उल्टा में और ज़्यादा पॉपुलर हो गया. ऑल द पेरेंट्स लाइक इट वेरी मच कि बच्चा तो हमारी सुनता नहीं है सर, यही सर के पास डालेंगे. कोई तो मेरे कॉम्पिटिटर ने वो डलवाया मुझे बदनाम करने के लिए. नायन सर बहुत गुस्से वाले हैं और मेरा एडमिशन डबल हो गया उसके बाद. पेरेंट्स ने बोला सर हमारी तो हमारा बच्चा सुनता ही नहीं है, सामने जवाब देता है, रात को देर रात तक जागता है, पार्टी करता है, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करना रहता है, पूरा टाइम फेसबुक पे चिपका रहता है, इंस्टाग्राम पे सेल्फी लेता है, पाउच करता है. आपको तो आपके माइंड सेटर पर डब्बा फोन दो तो अच्छी बात है सर. हमने तो ऐसा प्यार के मारे आईफोन गिफ्ट कर दिया बच्चे को. 10th में 97% आ गए, पता चला साला आईफोन की वजह से उसका रिजल्ट डूब रहा है अभी. तो सर आप ही फ़ोन ले लो. तो हमारे सब बच्चे डब्बा फ़ोन यूज़ करते हैं ना. फल पहले घर पे जाके साले पहले स्मार्टफोन यूज़ करते हैं. क्लास में हिम्मत है क्या? तो गुस्से वाले नए से देखने को बोलते बेटा ये तो साइज देख के साला मुझे गुस्सा करने को भी डर मुझे डर लगता है. सीरियस गेट अप. नैन सर बाहर क्यों गए थे अभी? क्योंकि बाहर आवाज़ आ रही थी. अभी मुझे पता चला बाहर वाले बच्चे को बोलने जरा आवाज़ मत करो, इधर इडियट अंदर आवाज़ कर रहे हैं. क्या मतलब बनता है? हाँ बैठना चुपचाप. और ये तेरा फ्यूचर है. बॉयज हैव टू बी साइलेंट because in future they are going to be husbands, right? And husbands don't say. Wife is always right. समझा? तू क्या हंस रहा है? Bloody blushing in the name of husband? Sit down. Question number 2. Revise. इसमें आपको बेटा जो भी पॉइंट ऐसा लग रहा है ना कि मैंने बोर्ड पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. ये वीक में तीनों की तीनों लेक्चर्स मेरे हैं. ये वीकेंड में फिजिक्स है नहीं. मुझे इनफ टाइम मिलने वाला है आईपैड नोट्स लिखने के लिए. सो बाय दिस वीकेंड आई विल फिनिश राइटिंग द आईपैड नोट्स. नेक्स्ट वीक वाला जो भी लेक्चर आएगा उसमें मैं आईपैड नोट्स शेयर करूंगा पेरेंट्स ग्रुप पे, जैसे हम लोगों ने वेक्टर्स में किया था. वी डिड नॉट वेट फॉर द चैप्टर टू गेट ओवर एंड देन आई गिव. आई एम श्योर द आईपैड नोट्स आर रियली हेल्पिंग यू बिकॉज आई आल्सो वर्क वेरी वेरी हार्ड इन राइटिंग दोस नोट्स. ओके, सो आई गिव यू द आईपैड नोट्स मे बी बाय 4th or 5th lecture from now. Okay, did you revise question 2? So now we don't use ranking. We don't use Rankine scale because there were many drawbacks of that. तो Rankine scale में it was divided into 80 equal parts. तो अपना जो स्केल आ रहा था ना वो डेसिमल पॉइंट में आ रहा था.
वैसे वो प्रॉब्लम फ़ारेनहीट में भी होती है, लेकिन फ़ारेनहीट का एक लिमिटेड रेंज है, 98.6 से लेके 106 तक, राइट? अगर आपको 99 दिख रहा है ना डॉक्टर के थर्मोमीटर में, यू डोंट हैव टू वरी, यू हैव नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। अभी जैसे आपने कुछ खाना खाया है, वो कैलोरी में कन्वर्ट हो रहा है, आपने कुछ स्पाइसी खाना खाया है, तो ऑयली खाना खाया है, तो उसकी वजह से भी आपका बॉडी टेम्परेचर बढ़ता है, यस और नो? बट दैट इज ओके, 99 इज नॉर्मल। 100 मतलब एकदम माइल्ड फीवर है, 101 मतलब है फीवर है, 102 मतलब मैटर टू लिटिल वरी, 103 मतलब रियली गो टू द डॉक्टर, 104 मतलब स्टार्ट प्रेइंग, 105 मतलब आप अपने रिलेटिव्स को बुला लो, जो भी है, जो भी भगवान में मानते हो उनको प्रे करना शुरू करो, 106, 7 मतलब राम नाम सत्य है। रीजन, योर आर्टरीज बर्स्ट, your blood cells die, they burst, they can't tolerate this temperature. Brain hemorrhage, kidney failure, heart failure, multiple problems. Is that clear? So that is really a matter to worry. So ultimately what happens is, your white blood corpuscles, they fight with the foreign germs. When they fail to fight, that means the virus which has attacked your body, right, they are much more powerful. So your white blood cells die. In fact, doctors तो ये बोलते हैं कि कभी कभी अपने को फीवर आता है ना साल में 1-2 बार, वो आना ही चाहिए। इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट इज इनडायरेक्टली इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी में अगर कुछ फॉरेन जर्म्स है तो मर जाते हैं, तो 1-2 बार फीवर आया, अच्छी बात है, इट इज वेरी गुड, राइट? महीने में आप 1-2 बार खाना नहीं खाते हो, बहुत अच्छी बात है। दैट इज द इनडायरेक्ट इंटॉक्सिफिकेशन ऑफ योर बॉडी, बिकॉज यू आर नॉट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा कचरा इन योर बॉडी। इज दैट क्लियर? सो योर स्टोर्ड फैट्स, they give you energy, they are converted into ATP and ADP. Okay, question number 2 हो गया. So next time I'll just teach you what is the calibration of these 3 scales, and we will also start doing assignment number 1 along with that. आज का लेक्चर समझा बेटा? Sure. Homework for you, question number 1 and 2 of your book twice on loose sheets. Question numbers 1 and 2 on loose sheets twice.